السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے چہنیٹ بسوط کی کہانی۔ قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے عدل و انصاف کی دور دور تک شہرت تھی۔ اس بادشاہ کے ماتحت کئی شہر تھے۔ تمام رعایا بادشاہ کی رحم دلی اور رعایا پروری کے گن گایا کرتی تھی۔ بادشاہ کو اپنی ملکہ سے بے حد محبت تھی، محبت بھی ایسی کہ شاید ہی کسی اور بادشاہ کو اپنی ملکہ سے ہو۔ کیوں نہ ہو، خدا نے ملکہ کو وہ حسن دیا تھا کہ ہر جگہ اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ حسن کے ساتھ سیرت بھی ویسی ہی پائی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جوں ہی دربار سے فارغ ہوتا تو اپنا تمام وقت ملکہ کے ساتھ گزارتا، حتیٰ کہ سیر و شکار کو بھی تنہا نہ جاتا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ملکہ کی طبیعت حساس بھی واقع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ ہمیشہ اس کی دل بہلائی کا کچھ نہ کچھ سامان مہیا کرتا رہتا۔ خدا کا دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت یہ دونوں بے حد غمگین رہتے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی ہوئے 12 برس گزر گئے تھے، لیکن اب تک کوئی وارث تخت پیدا نہ ہوا تھا۔ اس لیے دونوں کبھی کبھی انتہا سے زیادہ افسردہ نظر آتے تھے۔ ایک دن بادشاہ دربار خاص میں بیٹھا اپنے چند مصاحبوں اور امیروں سے محو گفتگو تھا۔ یکایک چہرہ پر رنجیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وزیر کہنے لگا، گستاخی معاف، کیا بات ہے؟ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پناہ بات کرتے کرتے یہ خلق چپ ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دریافت حال کیے لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے خاموش رہا، مگر عالی جاہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی افسردگی دیکھ کر خادم کو آج ہمت ہو گئی کہ دریافت کروں۔ سو عرض کر دیا، غلام دست بستہ حاضر ہے، حکم عالی ہو تو جان تک لڑانے کو تیار ہے۔ اتنا کہہ کر وزیر چپ ہو گیا۔ ایک مصاحب جو بادشاہ کا بہت ہی منہ چڑھا تھا کہنے لگا، وزیر سچ کہتا ہے۔ یہ تو جہاں پناہ خوب جانتے ہیں کہ جو بھی خلش ہو دل سے نکال ڈالنے اور دوسروں پر ظاہر کر دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ خادم کا بھی یہی کہنا ہے۔ جہاں تک غلام کی نظر جاتی ہے، کوئی ایسی چیز خیال میں نہیں آتی جو عالی جاہ کے لیے باعث رنجیدگی ہو۔ آپ تشریف فرما دیں تو بہتر ہے۔ اتنا سن کر بادشاہ کو خیال ہوا، جو بھی دلی حالت ہے کہہ دوں، اگر خدا کو منظور ہوا تو اولاد ہوگی، ورنہ کم از کم دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی بادشاہ مصاحبوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جانتے ہو خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، لیکن جو آرزو وارث تخت کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ شادی ہوئے 12 سال گزر گئے، مگر ملکہ کی گود ہری نہ ہو سکی۔ اولاد کی ہوس بری ہوتی ہے۔ مشہور طبیبوں سے علاج کروائے، بڑے بڑے عامل بلوائے، غرض کے جائز ناجائز ہر چیز کی گئی۔ بہت کچھ گناہ میں اپنے سر لیے بیٹھا ہوں، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ یہ سب ڈھکو سلے ہیں، اس لیے اب بالکل نا امید ہو گیا ہوں۔ یہی رنج ہے کہ ہر وقت یہی دکھ کھائے جا رہا ہے۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، جہاں پناہ کے کہنے کے مطابق جہاں کہیں گناہ سر کر لیے گئے ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ غلام کی عرض ہے کہ شہر میں ایک بہت ہی بڑا جوتشی آیا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کا بیان ہے کہ اتنی سچ پیشن گوئی کرنے والا شاید ہی کوئی اور ہو۔ خاکسار کی عرض ہے کہ حضور ایک اور وقت قسمت آزمائی کر کے دیکھیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، نہیں وزیر، جتنی کوشش کرنی تھی وہ سب ہو چکی، اب میرا اعتقاد کسی پر نہ رہا۔ اس پر سب لوگوں کا اصرار اور بڑھا۔ ہم لوگوں کی خواہش ٹھکرائی نہ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ایسی جرت نہ کی جائے گی۔ مجبوراً بادشاہ نے اجازت دے دی، جو چاہو وہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ایک چوبدار فوراً ہی جوتشی کو لے آیا۔ اس کو بادشاہ کا ہاتھ دکھلایا گیا۔ ہاتھ دیکھ کر جوتشی نے کہا، خدا کے فضل سے عالی جاہ کے گھر اسی سال چراغ روشن ہونے کو ہیں۔ جناب والا کی قسمت میں 2 پھل ہیں، لیکن ان دونوں صاحبزادوں کے نام
ایسے نایاب تجویز ہوں کہ کسی خاص و عام میں شاید ہی ایسے نام ملیں۔ غلام کی ایک اور عرض بھی ہے، ان بچوں کے ناموں کا علم سوائے عالم پناہ ملکہ عالم اور بچوں کے کسی کو نہ ہو۔ اگر اجازت عالی ہو تو میں ہی نام تجویز کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، خیر دیکھا جائے گا، میں تو نا امید ہو چکا ہوں، مجھے اولاد نہ ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو تمہارے ہی انتخاب پر نام رکھے جائیں گے۔ جوتشی نے کہا، خاکسار کا دعویٰ ہے کہ حضور کو ضرور اولاد ہوگی، رہا میرا، میں تو صحت میں گزارتا ہوں، ممکن ہے پھر نہ آ سکوں، اگر ارشاد ہو تو ابھی نام تجویز کر دوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے تنہائی چاہی، سب لوگ تعظیم بجا کر چلے گئے۔ بعد تخلیہ بڑے صاحبزادے کا نام چہنیٹ اور چھوٹے کا بسوط، اتنا کہہ کر جوتشی آداب بجا لایا اور چل دیا۔ بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو بلوا کر حکم دیا، جا کر ملکہ عالم سے کہہ دیں جہاں پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ سرا نے جا کر بادشاہ کے آنے کی اطلاع کر دی۔ سب کنیزیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور ملکہ استقبال کے لیے آگے بڑھیں۔ آداب بجا لا کر پہلو میں بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، آج جہاں پناہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ عالم جانتی ہیں کہ جہاں پناہ نے اپنی ملکہ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کبھی رنجیدہ بھی رہتے ہیں۔ یہ جہاں پناہ کی ذرہ نوازی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ آج اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ ملکہ نے کہا، تو فرمائیے، دیر کس چیز کی ہے؟ بادشاہ نے کہا، آج ایک جوتشی آیا تھا، اس کا بیان ہے اسی سال ہماری ملکہ کے اولاد ہوگی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری قسمت میں 2 پھل ہیں، اور کہتا تھا کہ ان کے نام بھی نادر ہوں اور سب سے پوشیدہ رہیں۔ نام بھی تجویز کر گیا ہے، بڑے کا نام چہنیٹ، چھوٹے کا بسوط۔ ملکہ، اس سے خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں تو۔ ملکہ، شہنشاہ عالم، ان باتوں کو جانے دیجیے، مجھے رنج ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر چراغ روشن ہونا تھا تو کب کا ہو چکا ہوتا، یہ میری بد نصیبی ہے۔ میری ایک عرض ہے کہ جہاں پناہ دوسری شادی کر لیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، ملکہ، یہ الفاظ میں تمہاری زبان سے سننا نہیں چاہتا، جو منظور خدا ہو وہی ہو کر رہے گا۔ ملکہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، سچ ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ رنج لگا رہتا ہے۔ دنیا میں وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کی ہر چیز اس کی مرضی کے موافق ہوتی ہو۔ شہنشاہ عالم، میں سچ عرض کرتی ہوں، میری طبیعت دنیا کے خرافات سے تنگ آ گئی ہے۔ ہماری ان محلوں کی زندگی سے تو کٹیاں والوں کی زندگی 1000 درجہ بہتر ہوگی۔ یوں تو ہر انسان کو بچوں کی آرزو ہوتی ہے۔ ہوس کے پردے ہماری آنکھوں پر بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تخت و تاج اور تمام شان و شوکت دیکھ کر ہمیں ان کی خواہش اور زیادہ ہو رہی ہے۔ بادشاہ، ملکہ عالم، ان باتوں کو جانے دو، چلو، سیر کا وقت ہو رہا ہے۔ کوچوان گاڑی لیے انتظار میں کھڑا ہے، دیر بھی تو بہت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ملکہ چپکے سے ساتھ ہو لی، لیکن اس کی اداسی کی وجہ سے سیر و تفریح میں کچھ لطف نہ آیا، اس لیے دونوں جلد واپس ہو گئے۔ مثل مشہور ہے کہ 12 برس بعد کوڑی کے بھی دن پھرتے ہیں، اسی طرح خدا نے ان کے بھی دن پھیرے۔ ملکہ کو چاند سا بیٹا ہوا۔ پھر کیا تھا، تمام شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ کا تو یہ عالم تھا، خوشی سے پھولا نہ سماتا، تمام خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ خیر خیرات کا یہ حال تھا کہ فقیر امیر ہو گئے۔ صبح سے شام تک مبارک سلامت کی دھوم مچی رہتی۔ دور دور سے امیروں رئیسوں نے آ کر مبارکباد پیش کی۔ غرض کہ ہر وقت لوگوں کا تاندا بندھا رہتا تھا۔ بادشاہ ہر ایک کو خلوص اور شفقت کا ثبوت دیتا اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھر سدھارتے۔ برابر 1 سال تک لوگ یوں ہی خوشیاں مناتے رہے۔ کیوں نہ مناتے؟ ہر ایک کو اتنی زیادہ دولت ملی تھی کہ وہ اپنی 7 پشت میں بھی نہ کماتا۔ مال مفت، دل بے رحم، مفت کا مال کھاتے اور بادشاہ کو 10 بیٹوں کی دعائیں دیتے۔ 1 سال کے بعد لوگوں کی گرمجوشی میں ذرا سی کمی آئی ہی تھی کہ خدا نے بادشاہ کو ایک اور بیٹا دیا۔ پھر کیا تھا، خوشیوں کا دبتا ہوا سیلاب پھر سے امنڈ آیا۔ ہر شخص خوشی کی لہر میں ڈوب گیا۔ بادشاہ نے ملکہ کو مبارکباد دی۔
जिस तरह बड़े शहजादे का नाम ज्योतिषी का बताया हुआ रखा गया था, इस बच्चे का नाम भी उसी का तजवीज़ किया हुआ रखा गया। वाज़े होकर यह नाम उसी की हिदायत के मुआफिक किसी पे ज़ाहिर न होने पाए। शहजादों के हुस्न का ये आलम था कि चाँद को भी मात हो रही थी। माँ बाप का ये हाल था कि बच्चों को आँखों से कभी ओझल न होने देते। तालीम व तरबियत का भी ख़ास एहतमाम था। अच्छे से अच्छे अतालीक और उस्ताद मुकर्रर थे। आदाब शाही के साथ साथ तालीम व तरबियत भी अच्छी हो रही थी और खुदा के फजल से शहजादे भी बहुत ज़हीन थे। इसलिए बादशाह और मलका दोनों मुतमईन थे। तमाम फ़िक्रों से बेखबर फिर सैर व तफरीह में मशगूल हो गए। मगर उन्हें क्या खबर थी कि उन खुशियों का जल्द खात्मा होने वाला है। एक रोज़ का जिक्र है, बादशाह दरबार में था और बड़े बड़े मुसाहिब जमा थे। बादशाह अमूर सल्तनत से मुतल्लिक गुफ्तगू में ऐसा महव था कि उसकी तफरीह का वक्त टल रहा था। यकायक ख्याल आते ही दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। ज़नाना महल में तशरीफ़ ले गया। उधर मलका भी बादशाह का इंतज़ार करते करते थक गई थी, तो अपनी एक खादमा को बुलाकर कहा, बरामदे में फ़र्श का इंतज़ाम हो। आज मलका आलम जंगल का मंजर देखना चाहती हैं, क्योंकि जहाँ पनाह के आने में देर है। इस महल का मगरबी हिस्सा कुछ ऐसा पुरफ़ज़ा था कि बरामदे की तरफ महल से मुत्तसिल बाग में नहरें और तमाम बाग फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंग के फूल, मुख्तलिफ फूल मिलकर कोसे क़ज़ा की बहार देते। हर तरफ सब जंगल ही जंगल, ऐसा मालूम होता गोया जन्नत है। मलका का ये दस्तूर था, जब कभी बादशाह के आने में देर होती तो खुद यहाँ बरामदे में बैठकर इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होती। इस तरह बादशाह के इंतज़ार की खटन घड़ियाँ आसान हो जातीं। आज भी मलका यहाँ बैठी बहार के मज़े ले रही थी। इतने में उसकी नज़र एक सनोबर के दरख्त पर पड़ी। क्या देखती है कि चिड़ा और चिड़िया मिलकर दरख्त पर घोंसला बना रहे हैं। ये दोनों इतने मुनहमिक हैं कि उन्हें अपने दाने चारे तक की परवाह नहीं। इन छोटे परिंदों की तनदही देखकर मलका मुतासिर हुए बगैर न रह सकी और दिल में ठान ली कि अपना जो तफरीह का वक्त हो वो रोज़ यहाँ गुजार देगी। इतना सोचने ना पाई थी कि एक लौंडी दौड़ती हुई आई और बादशाह के आने की खबर दी। बादशाह की खबर पाकर मलका ताज़ीम के लिए उठ खड़ी हुई। बादशाह ने आकर मलका के कंधे पर हाथ रखा। माजरत के लहजा में कहने लगा, आज मलका आलम को हमारा बहुत इंतज़ार करना पड़ा। कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि हम वक्त पर न आ सके। क्या मलका आलम खफा तो नहीं है? मलका, जी नहीं। क्यों खफा होने लगी? बल्कि मलका आज इंतहा से ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको एक नया मशगला मिल गया है। वो खुद यहाँ से हटना नहीं चाहती। जहाँ पनाह से माजरत चाहती है कि आज सैर को तन्हा जाएं। इंशाअल्लाह ताला कल ज़रूर चलेंगी। बादशाह को हैरत हुई, आखिर क्या बात है, मलका चलने से इनकार कर रही है। दरियाफ्त करने पर मलका ने सारा वाक़या बयान कर दिया। तब बादशाह ने ज़्यादा इसरार ना किया, खुद चला गया। अब हर रोज़ बादशाह के इसरार पर भी मलका सैर के लिए इनकार करती तो बादशाह को एक दिन फ़िक्र हुई, क्या हमारी मोहब्बत में तो फ़र्क नहीं आ गया, या मलका को कोई नई फ़िक्र तो दामनगीर नहीं हो गई। बादशाह इसी पेचताब में था। इधर मलका का हाल सुनिए। सुबह से शाम तक बरामदे में बैठी चीड़े और चिड़िया का तमाशा देखा करती। यहाँ तक एक घोंसला तैयार हो गया और बच्चे भी निकल आए। बच्चों का निकलना था कि उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। इस तरह कई दिन गुजर गए। मलका एक रोज़ क्या देखती है कि चिड़िया मर गई और चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया। उसी नई चिड़िया का बर्ताव बच्चों के साथ ठीक ना था और चिड़े को भी बच्चों के साथ पहली सी मोहब्बत ना रही। सारा दिन गुजर जाता पर बच्चों को बाज़ दिन दाना पानी तक ना मिलता। चिड़िया के बच्चों का ये हाल देखकर मलका रोज़ बरोज़ घुलती जाती थी। उन बेमाँ के बच्चों से मलका को कुछ ऐसा हो गया था और चाहती ये थी कि देखूं आखिर बच्चों का क्या हशर होता है। सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन मलका है बस बच्चों की बेबसी और माँ बाप की लापरवाही पर आंसू बहाती रहती। एक रोज़ इसी तरह बैठी थी कि चीड़ा और चिड़िया घोंसले के करीब आ बैठे और आपस में तकरार होने लगी। चिड़िया का इसरार था कि इससे अब बच्चों की संभाल न हो सकेगी, कोई दूसरा इंतज़ाम कर ले या इसकी तजवीज़ पर अमल करे। आखिरी बात पर चिड़ा चूक पड़ा और कहने लगा, बताओ वो कौन सी तजवीज़ है, मैं भी तो सुनूं।
इस पर चिड़िया ने तिनक कर कहा, तुम्हें मालूम है मेरा जो भी फैसला होता है वो आखिरी हुआ करता है। मुझे छोड़ दो या बच्चों का खात्मा कर दो। चिड़िया के इस फैसला पर चिड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, क्या करूं, क्या ना करूं। चिड़ा इतना सोचने पे भी ना पाया था कि चिड़िया अपने तेवर पर बल डालकर कहने लगी, सोचते क्या हो, कोई एक जवाब दो। चिड़े ने जिद होकर कहा, बेशक बेमाँ के बच्चों को जीने का क्या हक है, तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो सो करो। फिर क्या था, चिड़िया खुशी खुशी जंगल की तरफ गई। कुछ देर बाद वापस आई। करीब आने पर मालूम हुआ मुंह में गोखरुए ले आई और चुपके से घोंसले में चली गई। कुछ देर अंदर रही, फिर इधर उधर देखकर जंगल की राह ली। चिड़िया का निकलना था कि मलका को शक हुआ और गौर से देखने लगी। अभी कुछ देर भी ना होने पाई थी कि बच्चों के ची ची की आवाज़ें आना शुरू हुईं। आवाज़ के साथ ही चारों बच्चे फड़फड़ाकर घोंसले से नीचे आ गिरे और बेबसी के आलम में जान तोड़ दी। ये हाल देखकर मलका के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आह जालिम चिड़िया, आखिर जान लेकर ही रही। साथ ही साथ बेहोश हो गई। मलका का बेहोश होना था कि तमाम कनीज़ों ने गुल मचाया। जो ही बादशाह को खबर हुई तो शहजादों को साथ लिए अंदर आया और मलका का हाल देखा तो घबरा गया। फौरन होश में लाने की तदबीर करने लगा। गर्ज के ज़रा सी देर में हकीम तबीब सब जमा हो गए। खुदा खुदा करके कुछ देर बाद होश आया तो सब लोग खुश खुश अपने अपने कामों में लग गए और बादशाह मलका के नज़दीक बैठकर कहने लगा, मलका क्या बात है, हमारी मलका को किस चीज़ का गम है जो अपने आप को इतना अफसुर्दा किए रखती हो, और कई दिन से हमारा इसरार है, वजह बताओ। लेकिन जवाब नफ़ी में मिलता रहा। आज की हालत कुछ ऐसी रही कि हम हालात सुने बगैर नहीं जा रहेंगे। मलका क्यों नहीं कह देती, क्या मैं जिस पर जान देता हूँ वो मुझको नहीं चाहती। मलका हैरत से आलम पनाह। क्या आप मलका को दगाबाज समझते हैं? बादशाह, तो फिर क्या बात है? मलका आलम हमसे हर चीज़ छुपाती हैं। मलका, नहीं तो जहाँ पनाह को मालूम है, मैं कई दिन से बाग में बैठी चिड़े चिड़िया की ज़िंदगी का तमाशा देख देख कर दिल बहलाया करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते वैसे मेरी दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैंने जहाँ पनाह के साथ तफरीह को जाना छोड़ दिया। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर ना रही। चंद ही दिनों बाद चिड़िया मर गई। चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया। जूँ तूँ कुछ दिन नई चिड़िया ने बच्चों को संभाला और एक रोज़ कुछ ऐसे चिड़िया चलकर चली कि चिड़ा बच्चों को मार डालने पर राज़ी हो गया। अब क्या था, चिड़िया की तमन्ना तो बार आई। गोखरू खिलाकर चिड़िया ने बच्चों को मार डाला। ये कहकर मलका रोते हुए फिर कहने लगी, अगर खुदा ना ख्वास्ता मुझको भी कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। ये है ख्याल जो मुझको हर वक्त घुलाए रखता है। ये सुनकर बादशाह मलका की नादानी पर हंसा और कहने लगा, मलका, इन बेकार ख्यालात को दिल से निकाल दो। इन हकीर परिंदों की बात पर तुम समझदार होते हुए ख्वामख्वाह दिल गिरफ्तार हो रही हो। गर्ज के बादशाह के समझाने बुझाने से मलका को कुछ तसल्ली हुई। बच्चों को लिए बादशाह के हमरा सैर के लिए चली गई। लेकिन ये सुकून आर्जी था। कुछ दिन गुजरे भी ना पाए थे कि रह रह कर फिर वही ख्याल सताता था। रोज़ बरोज़ मलका की तबीयत खराब हो गई। चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। बादशाह का ये हाल कि खाना पीना सुबह से शाम तक मलका के पास हटता तक नहीं था। दिन में 10-10 हकीम बुलवाता मगर कुछ ना होता था, ना हुआ। आखिर एक दिन मलका दुनिया छोड़कर अपने असली मुकाम को कोच कर गई। मरते वक्त बादशाह को पास बिठाकर ताकीद की, दूसरी शादी ना करे और बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखे। बादशाह से वादा लेकर इस फानी दुनिया को खैराबाद कहा। मलका के गम में बादशाह दीवाना हो गया। तमाम वक्त आहोजारी में गुजारता, किसी को आने देता, ना खुद किसी से मिलता। इसी रंजो आलम में 6 माह गुजर गए। ये हाल देखकर तमाम साहबों को फिक्र हुई, अगर यही हाल कुछ दिन और रहा तो बादशाह को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और सल्तनत भी हाथ से जाती रहेगी। इस ख्याल के आते ही सब परेशान हुए और तजवीज़ हुई कि चलकर बादशाह को समझाएं और दूसरी शादी करने पर मजबूर करें। इसलिए एक दिन वज़ीर बादशाह के पास जाकर अपने आने की इत्तला कराई। इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ।
तस्लीम बजा लाकर एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बादशाह ने बैठने को कहा। वजीर बैठकर मुल्क के तमाम हालात बतलाते हुए कहने लगा, हजूर की गोशानशीनी की वजह से मुल्क में अबतरी फैली हुई है। गुलाम को डर है कि चंद दिन इसी तरह गुजर जाएं तो सल्तनत हाथ से चली जाने का अंदेशा है। इसमें शक नहीं कि जहां पनाह को जो रंज है शायद ही किसी और को हो, लेकिन जहां पनाह पर दूसरे फराइज भी आयद हैं। बेअदबी मुआफ, रैयत बादशाह की औलाद समझी जाती है। अगर सल्तनत दूसरों के हाथ में चली गई तो शहजादा बुलंद इकबाल की हक तलफी होगी और तमाम रियाया की बर्बादी। हजूर को खुदा के यहाँ इसका जवाब देना होगा। इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ छाड़ कर किनारा कश हो जाना खिलाफ मसलहत है। इसलिए खादिम की अर्ज है कि जहाँ पनाह दूसरी शादी करें। बादशाह ने यूँ जवाब दिया, मुझे अब सल्तनत और बादशाह से कोई सरोकार नहीं। तुम जो चाहे कर लो, मुझको ना सताओ। इस तरह कई दफ़ा के इसरार पर एक रोज़ बादशाह रजामंद हो गया और एक मुल्क की शहजादी से शादी भी हो गई। दुनिया अजीब ढंग पर चलती है। शाह हो के गदा, किसी का एक रंग नहीं रहता। बादशाह का ये रंजो आलम देखकर किसी को गुमान तक न होता था कि शादी के साथ ही बादशाह बज़्म-ओ-नशात में मसरूफ़ हो जाएगा। अब भूले से भी मरहूम मलका की याद उसको ना सताती। अलबत्ता बच्चों का ख्याल ज़रूर था। मरहूमा की वसीयत के मुताबिक शहजादों को नई मलका के साथ ना रखा, बल्कि दोनों के लिए अलहदा महल बनवा दिया। बच्चों की ख्वाहिश पर कीमती गेंद बनवा दिए। इधर बच्चे अपने पढ़ने और खेलों में मसरूफ़ थे, उधर बादशाह उस नई मलका का कुछ ऐसा सहर चला कि वो जो कहती उस पर अमल करता। मलका को मालूम हुआ कि बादशाह बच्चों को बहुत चाहता है। उन्हें अलहदा इस ख्याल से रखा है कि सुतेली माँ से बच्चों को तकलीफ ना पहुँचने पाए। मलका के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इन कांटों को अपने रास्ते से हटाने के लिए मौका की मुतलाशी रहती। एक दिन वो मौका भी हाथ आ गया। हुआ ये कि दोनों शहजादे खेलते खेलते बाग में आ निकले। इधर मलका बरामदे में बैठी थी। जो ही बच्चों पर इसकी नज़र पड़ी तो उनका हुस्न देखकर हैरत से दिल में कहने लगी, ये किसके बच्चे होंगे जो इतने हसीन हैं। फिर फौरन ख्याल आया कि ज़रूर मरहूमा मलका के होंगे। उसको अब तक शहजादों को देखने का इत्तफाक नहीं हुआ था। वो अब समझी कि बादशाह इसी वजह से तो इतना चाहते हैं, बच्चे इतने हसीन हैं तो उनकी माँ के हुस्न का क्या हाल होगा। इस ख्याल के साथ ही फौरन एक लोंडी को बुलवा कर पूछा, जानती हो ये किसके बच्चे हैं? मलका आलम, ये मरहूम मलका के बच्चे हैं, कनीज़ ने जवाब दिया। बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं। मलका आलम, आप साहबजादों के हुस्न को देखकर इतनी मुतहय्यर हो गई हैं। आबदीदा होकर कनीज़ ने कहा, मरहूम मलका को देखती तो क्या कहती, मलका वाकई इतनी हसीन थी। बेशक इस मलका की नज़र दुनिया में ना होगी। इतना कहकर चली गई। ये तारीफ और तौसीफ सुनकर मलका और भी भड़क उठी। दिल में ठान ली कि किसी न किसी तरह बच्चों को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए। इतना सोचने ना पाई थी कि शहजादे की गेंद सामने आ गिरी। चुपके से लेकर रख दी। गेंद का जाना था कि दोनों शहजादे परेशान होकर तलाश करने लगे। उन शहजादों का खिदमतगार जो दूर बैठा देख रहा था आकर कहने लगा, क्या देख रहे हो शहजादे, आपकी गेंद तो ऊपर जा गिरी है, शायद मलका ने ले ली हो, जाकर मांग लो। शहजादे, अच्छा तो तुम हमें वहां पहुंचा दो। बच्चे ये कहकर गुलाम को साथ लिए मलका के पास पहुंचे। आदाब बजा लाकर कहने लगे, अम्मी जान, हमें हमारी गेंद दे दीजिए। मलका, कहाँ का गेंद? कैसा गेंद जो मुझसे मांग रहे हो? जाओ वहीं कहीं होगा, ढूंढ लो। शहजादे, नहीं अम्मी, हमारा गेंद यहीं आकर गिरा है, इसलिए हम मांग रहे हैं, शायद आपको मिला हो। मलका, जाओ लड़को, मुझको क्यों तंग करते हो? टका सा जवाब सुनकर शहजादे मायूस वापस हुए। एक ही गेंद से खेलने लगे। कुछ देर बाद दूसरा गेंद भी ऊपर जा गिरा तो फौरन शहजादे मलका के पास पहुंचे और कहने लगे, कम अज़ कम अब जो गेंद गिरा है वो दे दीजिए। मलका ने डांट डपट कर कहा, पागल लड़को, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? बार बार गेंद गेंद, चलो यहाँ से, खामोश हो जाओ वरना बुरा नतीजा होगा। ये बातें सुनकर शहजादों को भी गुस्सा आ गया। गुस्सा की हालत में ढूंढने की खातिर जरा करीब पहुंचे तो गेंद पर नजर पड़ी। फौरन दोनों भाइयों ने गेंद उठा ली
और दौड़ते हुए नीचे आ गए। मलका सोचने लगी, अब मौका तो हाथ आ गया है, कोई तदबीर ऐसी करनी चाहिए कि हमेशा के लिए निजात हो जाए। इन्हीं ख्यालात में गलता थी कि एक बात उसके जहन में आ गई और खुशी से उछल पड़ी। दिल ही दिल में कहने लगी, अगर बच्चों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर बादशाह से कह दूं तो जाहिर है बादशाह बहुत ही बुरा फरोख्ता होकर उन्हें कत्ल करवा देगा। इस तरह से अपना काम बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं पगली होती जा रही हूँ। अगर बादशाह बच्चों को कहीं दूर भिजवा कर कत्ल करने का हुक्म दे तो मुमकिन है सिपाहियों को रहम आकर बच्चों को जिंदा छोड़ दें। आइंदा के लिए ये बहुत ही बुरा होगा। फिर ख्याल आता है कि दोनों बच्चों की आंखें मंगवा लूँ तो इत्मीनान हो जाएगा। मशहूर कहावत है कि औरत का माया द्यो ना पाया। मलका मकर देखिए, बादशाह के आने का वक्त देख भाल नोच कर रोती हुई पलंग पर जा लेटी। इधर बादशाह की आमद की खबर पाकर सब लोंडियां बाअदब खड़ी हो गईं। बादशाह सीधे मलका के पास चला गया। मलका को इस हाल में देखकर परेशान हो गया और तमाम कनीज़ों को बुलवाकर दरियाफ्त किया, क्या बात है मलका, आज गमगीन है? ने कांपते हुए जवाब दिया, आलम पना, हमें कुछ खबर नहीं। मलका आलम की ये हालत देखकर हम खुद भी परेशान हैं। बादशाह ने कहा, तख लिया। हुक्म के साथ ही सब हट गईं। बादशाह मलका के पास बैठकर खुशामद करने लगा कि वजह मालूम हो, लेकिन मलका टस से मस तक न हुई तो बहुत ही मिन्नतों समाजत करते हुए कहा, मलका कुछ तो कहो, आखिर तुम्हें किसने ईज़ा पहुंचाई? अगर मालूम हुआ तो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। बादशाह के अल्फाज कुछ ऐसे थे कि उसको यकीन हो गया कि अब जादू चल गया। रोते हुए कहने लगी, जहाँ पनाह, मुझे क्या मालूम था कि आपके साहबजादे इतने जलील किस्म के हैं। अगर मुझे मालूम होता तो पास बुलवाने की जुर्रत ना करती। अब मेरा यहाँ निभाना होगा। जिस घर में मेरी इज्जत और नामूस खतरे में हो, भला मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? मलका की इन गोलमोल बातों से बादशाह आजिज होकर कहा, कुछ भी कहना हो साफ अल्फाज में कह दो। शहजादों की यहाँ आने की कैसी जुर्रत हुई? मैंने तो उन्हें कभी यहाँ आने की इजाज़त न दी थी। मलका, बात ये हुई, शहजादे बाग में गेंद खेल रहे थे। मैं बरामदे में बैठी उनका खेल देख रही थी। इतने में उनकी गेंद फौरन ऊपर आ गिरी और बच्चे देखने के लिए ऊपर आ गए। मुझे इल्म ना हुआ कि ये बच्चे आलम पनाह के हैं। मैंने कनीज़ से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि मरहूम मलका के शहजादे हैं। तो मैं उन बच्चों को अपने पास बुलाया। बच्चों ने अपना गेंद मांगा, लेकिन मैंने कुछ ज़रा ठहरने की गर्ज से गेंद देने से इनकार कर दिया तो दोनों लड़के बुरी नज़र से मेरी तरफ झपट पड़े। अगर आज मेरी ख़ास कनीज़ ना होती तो इज़्ज़त का खात्मा था। इतना सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया। कहने लगा, तुम जो सज़ा तजवीज़ करोगी मैं देने को तैयार हूँ। मलका दिल में बहुत खुश हुई, फिर रोती हुई कहने लगी, ऐसे नकम्मे लड़कों को जो भी सज़ा दी जाए कम है। जब तक उन्हें कत्ल करवा कर उनकी आंखें ना मंगवाई जाएंगी, मैं खाना पीना अपने ऊपर हराम कर लूँगी। बादशाह खामोश बाहर चला गया। वज़ीर को तलब किया गया। सिपाही ने वज़ीर से कहा, जहाँ पनाह ने याद फरमाया है। वज़ीर, सिपाही, तुम जानते हो इस बेमौका बुलवाने का सबब क्या है? सिपाही, आलिजा, मुझे क्या खबर, क्यों याद हुई है? मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। जो हुक्म आली था पहुँचा दिया। अच्छा चलो, मैं अभी आता हूँ। और साथ हो लिया। यहाँ बादशाह गुस्सा की हालत में आपे से बाहर है। बार बार कहता जाता है कि अभी वज़ीर नहीं आया। इतने में वज़ीर के आने की इत्तला हुई। अंदर दाखिल हुआ। ये मंजर था कि देखूं क्या इरशाद है। बादशाह, वज़ीर, वज़ीर चूक कर आलिजा, तुम जानते हो तुम्हें किस घर से बुलाया गया है? खादम लाइल्म है। जिन शहजादों को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रख कर परवरिश कर रहा हूँ, क्यों ना करता, आखिर मेरी ही औलाद है। मगर मुझे यह क्या मालूम था कि ये बच्चे मेरे ही सरहाने के सांप बनकर मुझ ही को डसने के लिए तैयार हो गया। जानते हो वज़ीर, नाबकार है। मेरे नज़दीक वो सख्त से सख्त सज़ा की मुस्तहिक है। वज़ीर, हजूरे वाला, आखिर उन शहजादों से कौन सी ऐसी खता सरजद हुई जो इतनी सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाए? बादशाह, मेरी अदम मौजूदगी में दोनों शहजादे महल में जाकर मलका आलम की इज्जत पर हमला आवर होना चाहते थे। बयान है कि कनीज़ ना होती तो मलका को रुसवाई की मौत मरना पड़ता। हमारा जो भी फैसला होता है वो अटल होना होता है। जाओ। और इंतहाई गुस्सा से कहा,
अभी जाओ और शहजादों को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दो। अगर तुमने इसमें ज़रा भी हुक्म अदूली या रहम दिली से काम लिया तो तुम्हारे तमाम ख़ानदान की खैर नहीं। हाँ, कत्ल करके उनकी आंखें भी ले आना। क्या तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया? वज़ीर का ख्याल करने लगा कि अगर मैं ज़रा हिम्मत से काम लूँ तो शायद बच्चों की जान बच जाए। इस ख्याल के आते ही वज़ीर ने यूँ कहा, आलम पनाह, एक अर्ज़ है, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, बाद में जैसी मर्ज़ी। अच्छा, क्या चाहते हो? जल्द कह डालो। वज़ीर, खादम की समझ में नहीं आता कि शहजादों ने ऐसी हरकत की हो। उनका सन ही क्या है, शायद आलम पनाह को गलत बावर करवाया गया हो। बादशाह, वज़ीर, ये अल्फाज तुम किसकी शान में बक रहे हो? तो फिर क्या मलका ने झूठ कहा? बस अब तुम कुछ नहीं कह सकते, जाओ और फ़ौरन हुक्म की तामील कर दो। इतना सुनकर वज़ीर चुपके से निकल गया। बाहर जाकर चंद सिपाहियों को हमरा लेकर बच्चों के पास गया और दोनों शहजादों के साथ लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। वज़ीर की इस हरकत पर शहजादे परेशान होकर पूछने लगे, अच्छे वज़ीर, हमें जंगल क्यों ले जा रहे हो? बच्चों से ये सुनकर वज़ीर की आंखें डबडबाईं। जो वाक़या था सब कह डाला। ये सुनकर शहजादे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते साथ हो लिए। इस तरह जाते जाते कई मंजिलें तय हो गईं तो वज़ीर को इत्मीनान हो गया कि वो काफ़ी दूर निकल आए हैं। यहाँ कुछ देर ठहर कर ख्याल करने लगा, अगर बच्चों को ज़िंदा छोड़कर हिरन तलाश करूँ, अगर ये मिल जाएं तो बच्चे बच जाएंगे और हिरन की आंखें ज़ालिम मलका को दे दूंगा। ये सोचकर बच्चों को एक दरख्त के नीचे छोड़कर सब सिपाहियों को साथ लिए वापस जाने लगा। ये देखकर शहजादों ने रोते हुए वज़ीर से इल्तिजा की, हमें बेयारो मददगार जिंदा छोड़ जाने से क्या हासिल, कत्ल कर दीजिए। वज़ीर ने जवाब दिया, कौन बेदर्द इंसान होगा जो बेगुनाहों का कत्ल करके अजाब अपने सर ले। शायद ये हुक्म दूसरों के लिए मिलता तो मुमकिन है अमल करता, लेकिन जानते हो ये हुक्म इसके लिए है जो मरहूम मलका को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे। भला वो कौन सी मौजी होगा जो इन शहजादों को कत्ल करके मलका की रूह को तकलीफ पहुंचाए, और इन मासूमों का कातिल बनना कौन गवारा करेगा। ये काम हमसे तो नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें खुदा के भरोसा छोड़ जाते हैं। इस तरह खुदा हाफिज कहकर वज़ीर चल दिया। अब मजलूम शहजादों का हाल सुनिए। दोनों शहजादे एक दरख्त की टहनी का सहारा लिए बैठे अपनी माँ को याद करते और बदनसीबी पर 8 आंसू बहा रहे थे। अब ये रो ही रहे थे कि हमारा अपनी मादा को लिए इसी दरख्त पर आ बैठा। जूं ही बच्चों पर नज़र पड़ी तो उनके हालात से बाखबर हो गया। कहते हैं कि ये परिंदा गैब का हाल जानता है। हालात से वाकिफ होते ही दिल में ठान ली अपनी जान देकर शहजादों को फ़ायदा पहुंचाए। मादा से मुखातिब होकर कहा, आज क्या सुनना चाहती हो, आप बीती या पर बीती? मादा, आप बीती तो रोज़ सुना करती हूँ, पर बीती सुनाओ ताकि दूसरों के हालात जानकर अपने लिए कुछ हासिल करूँ। हुमा ने पर बीती शुरू की। पर बीती क्या थी? उन शहजादों की मुफस्सल हालत पैदाइश से लेकर अब तक और कत्लो पैदाइश तमाम किस्सा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनकर मादा ने यूं दरियाफ्त किया, फिर शहजादों का क्या हाल होगा? हुमा, क्या होगा? सिर्फ मेरी ही रहमो इमा पर शहजादों का दारोमदार है। अगर हिम्मत करके मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं तो ये बच्चे तमाम उम्र आराम से रह सकते हैं। रहा मेरी हकीर ज़िंदगी, इससे क्या हासिल? अगर मेरे मामूली इसार पर एक बहुत बड़े मुल्क का फ़ायदा हो रहा हो तो मुझको अपनी जान देकर मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। मादा बहुत ही दिल गिरफ्ता होकर कहने लगी, बड़े चले एसार करने, ज़ात के ना जमात के, तुम्हें क्या गर्ज पड़ी है गैरों की खातिर जान दे दें। लेकिन हुमा पर उन अल्फाज का कुछ असर ना हुआ तो लगी चापलूसी करने। अच्छा हुमा, मुझे तन्हा ना छोड़ जाओ, मेरी तन्हाई का तो ख्याल करो। ये सुनकर भी हुमा अपना इरादा ना बदला तो नाचार चुप हो रही। हुमा ने कहा, कुछ देर में नीचे गिरता हूँ, शहजादों को चाहिए कि वो मुझे पकड़कर काट लें और भून कर 2 हिस्से कर लें। जो लड़का ऊपर का हिस्सा खाएगा वो ज़रूर एक रोज़ बादशाह होगा और जो निचला हिस्सा खाएगा वो फ़कीर। लेकिन फ़कीर में ये खूबी होगी कि हर सुबह इसके मुंह से 5 लाल गिरा करेंगे। इसके बाद अपनी मादा को खुदा हाफिज कहा और नीचे आ गिरा। नीचे गिरना था कि बड़े शहजादे ने फ़ौरन उसको ज़िबा किया
और 2 हिस्से बनाकर भून डाला। चाहता था कि भाई को लेकर खाना शुरू करे, लेकिन फौरन ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं ऊपर का हिस्सा खा लूँ तो बादशाह बन बैठूंगा और मेरा भाई फकीर बनकर दरबदर खाक छानता फिरेगा। इन्हीं पीछोताप में डूबा हुआ था कि छोटे भाई ने कहा, भाई सोचते क्या हो, चलो शुरू करें। आखिरकार भाई की कमसनी का ख्याल करते हुए दिल में फैसला किया कि मुझे खुद ऊपर का हिस्सा खाना चाहिए। अगर बादशाहत मिली तो मैं अपने भाई को भी संभाल लूँगा। इस तरह से हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। उसको अपनी ये तजवीज़ पसंद आते ही ऊपर का हिस्सा खुद खाना शुरू कर दिया और निचला हिस्सा भाई को दे दिया। खा चुकने के बाद दोनों को प्यास लगी। आसपास कहीं पानी दिखाई न दिया। प्यास से दोनों के हल्क में कांटे पड़ रहे थे, मगर अब तक कोई सूरत बन न पड़ी। शहजादा चनीट अपने छोटे भाई बसूत से बोला, तुम एक तरफ पानी की तलाश में निकलो और मैं दूसरी तरफ। अगर पानी मिल गया तो मैं पीकर तुम्हारे लिए लेता आऊँगा, और तुम्हें मिला पीकर मेरे लिए ले आना। बसूत, तरकीब तो खूब बताई, पर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम एक दूसरे की तलाश में पानी लिए फिरें। चहनीट, तुम सच कहते हो, हकीकत में हमारे पास कोई चीज़ नहीं, मगर हाँ, ये हो सकता है जिसको पानी मिले वो अपने रुमाल भिगो लाए, सिवाय इसके कोई चारा नहीं। ना कहकर दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा और चले गए। अच्छा, अब हम तुम्हें बड़े शहजादे का हाल सुनाते हैं। वो यहाँ से निकलकर एक तरफ चला। चलते चलते बहुत देर हो गई। आबादी का कहीं नामो निशान तक न था, मगर यह है कि आगे ही बढ़ता जा रहा था। रह रह कर उसको भाई की याद सता रही थी। आखिर चलते चलते शाम हो गई तो उसने मायूस होकर चारों तरफ निगाह डाली। कहीं दूर टमटमाता चिराग दिखाई दिया। रोशनी देखकर शहजादा खुश हुआ और दिल में कहने लगा, ये हमारी ज़िंदगी का रोशन सितारा हो, शायद इसी रोशनी में हमारी किस्मत पहना हो। इस ख्याल के साथ ही जल्दी जल्दी जाने लगा। थोड़ी दूर गया था कि एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी देखकर करीब गया। उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी जो झुककर सलाम किया। बुढ़िया ने हाथ उठाकर दुआएं दी और आने का हाल दरियाफ्त किया। नानी अम्मा, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत देर से पानी की तलाश में सरगर्दा रहा, मगर पानी कहीं ना मिला। जा रहा था कि नज़र आपकी झोंपड़ी पर पड़ी, तो यहाँ आया। ज़रा पानी तो पी कर अपना रास्ता लूँ। शौक से पियो बेटा, तुम्हें कौन रोकता है। ये कहकर बुढ़िया अंदर गई और कुछ देर बाद रोटी पर कुछ साग लगाए लोटी और पानी लिए बाहर आ निकली और कहा, बेटा खाली पेट पानी क्यों पीते हो, कुछ रोटी खाकर पानी पी लो। गरीब के पास दोहरा ही क्या है जो तुम्हें खिलाए। कुछ रोटी थी, ले आई। भराई हुई आवाज़ में शहजादे ने यूं कहा, नानी अम्मा, आप जिस खलूस और मोहब्बत से रोटी खिला रही हैं वो 1000 नेमतों से कहीं बेहतर है। इस तरह शुक्रिया अदा करते हुए शहजादे ने रोटी खाई और जब पानी पीकर सैर हो चुका तो बुढ़िया से इधर उधर की बातें की और इसके बाद जाने की इजाज़त चाही। जाते हुए कहा, नानी अम्मा, एक और तकलीफ़ देता हूँ, ज़रा ये रुमाल भिगो दीजिए। बेटा, रुमाल भिगो कर क्या करोगे। मेरा छोटा भाई भी पानी की तलाश में निकला है, शायद उसको ना मिला हो तो ये पानी पी लेगा। अच्छा बेटा, अभी भिगोए देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने रुमाल भिगो दिया तो शहजादे ने खुदा हाफिज़ कहा और चल दिया। अब हम आपको एक और शहर का हाल बताते हैं। शहजादा चहनीट जिस तरफ जा रहा था उसी रुख पर एक बहुत बड़ा शहर था, जहाँ के बादशाह को इंतकाल हुए 6-7 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी तजहीज़ व तकफीन अभी तक अमल में ना आई थी। वजह ये थी कि बादशाह लावल्द था। मरते वक्त उसकी वसीयत थी, मेरे बाद तुम लोगों को दूसरे बादशाह के इंतखाब में मुश्किल दरपेश होगी, इसलिए हिदायत करता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जो ख़ास हाथी है उसकी सूंड में फूल का हार दें। वो जिसके गले में हार डाले उसको तख्त नशीन कर देना। जब तक ये इंतज़ाम ना हो मुझको दफन ना करना। ये कहकर बादशाह मर गया। इस वसीयत के मुवाफिक ऐलान के साथ ही लाखों आदमी जमा हो गए। शहर का ये हाल था कि तिल धरने को जगह ना थी, लेकिन हाथी ने किसी को हार ना डाला। शहजादा चहनीट जो भाई की तलाश में जा रहा था वो इत्तफाक से इधर आ निकला। जो ही बड़े मजमा में उसकी नज़र पड़ी तो कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया। खुदा की कुदरत में किसी को दखल नहीं, अगर वो चाहे तो ज़रा सी देर में पहाड़ को रत्ती और रत्ती को पहाड़ बना देता है। कोई जानता था कि फ़कीर से भी बदतर हालत में फिरने वाला शहजादा इतने बड़े शहर का हुक्मरान बन जाएगा, मगर होते जहार के चकने पात आप ही आप नज़र आते हैं।
इस रद्दी हालत में भी शहजादा के चेहरा से शाहो जलाल टपक रहा था। जैसे ही हाथी की नज़र उस पर पड़ी तो तमाम मजमा को चीरता फाड़ता, कई लोगों को रोनता हुआ पास आकर उसके गले में हार डाल दिया। हार डालना था कि शहंशाह आलम जिंदाबाद के नारों और तालियों से मैदान गूंज उठा और साथ ही अमीरों और रईसों ने आगे बढ़कर ताज़ीम बजा लाई। इज़्ज़त और एहतराम के साथ शहजादे को ले जाकर ताजे शाही पहनाया गया और तख्त नशीन कर दिया। चंद ही दिनों में शहजादा बादशाहत के तमाम अमूर से वाकिफ़ हो गया और काम इस खूबी से अंजाम देने लगा कि सब लोग बादशाह के हसीन इंतज़ाम से बेहद खुश थे। फ़याज़ी, रहमदिली और सच्चाई उसके ख़ास जौहर थे। उसके ये तमाम औसाफ ने एक ही साल में तमाम राया को अपना गर्विदा बना लिया और सब लोग उसके पसीना की जगह अपना खून बहाने को हर वक्त तैयार रहते। गर्ज के बच्चे बूढ़े सब ही उसका कलमा पढ़ते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद शहजादा गमगीन रहता। जब कभी भाई की याद आती तो घंटों रोता और सोचता, भाई से मिलने की क्या तदबीर करूं। एक रात तन्हा अपनी ख्वाबगाह में बैठा इसी पर गौर कर रहा था कि एक बात समझ में आ गई। फौरन खुशी में आपे से बाहर हो गया और अपने आप से कहने लगा, अगर मैं ऐलान कर दूं कि जिस किसी को चहनीर सूट की कहानी आती है वो आए और बादशाह के हजूर अर्ज करे और इनाम हासिल करे, इस तरह से मेरे भाई का पता चलेगा, क्योंकि हम दोनों के हालात और नामों से कोई दूसरा वाकिफ नहीं। तमाम किस्सा लफ्ज़ लफ्ज़ जो सही कहेगा वही मेरा भाई होगा। ये ख्याल पड़ते ही शहजादे ने घंटी बजाई। फौरन एक खिदमतगार आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, जाकर वज़ीर को बुलाओ। ये सुनकर तामील हुक्म के लिए पिछले पाँव वापस आया और वज़ीर के पास जाकर कहा, हजूर को जहाँ पनाह ने याद फरमाया है। कुछ देर बाद वज़ीर बादशाह के हजूर में हाजिर होकर आदाब बजा लाकर खड़ा हो गया तो बादशाह ने कहा, वज़ीर, कल तुम शहर में ये मनादी करा दो कि जिसको चहनीट बसूत की कहानी आती है वो हमारे पास आकर सुनाए और इनाम पाकर जाए। हाँ, और 2 सिपाही शहर पनाह के हर दरवाजे पर मुकर्रर कर दो। बस इनका यही काम हो कि वो हर आने जाने वाले से दरियाफ्त करें कि उसको चहनीट बसूत की कहानी आती है या नहीं। अगर ज़रा सा भी शुबा हो तो उसको यहाँ ज़रूर कर दें। वज़ीर को ताज्जुब हुआ, इस किस्सा में क्या ख़ास बात होगी। ज़रा हिम्मत करके पूछा, मुदाखलत मुआफ़, क्या इस किस्सा में कोई खसूसियत है? बादशाह ने कहा, बात को तुम्हें खुद इल्म हो जाएगा, अब तशरीह की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वज़ीर आदाब बजा लाकर रुखसत हुआ। दूसरे ही दिन वज़ीर ने हुक्म की तामील की और अब क्या था, इनाम की लालच में हर रोज़ 1-2 आदमी बादशाह के दरबार में हाजिर होकर अपनी मनगढ़ंत सुनाते। उनकी झूठ थोड़ी ही देर में मालूम हो जाती, मगर बादशाह दिलशकनी न करने के ख्याल से कुछ न कुछ देकर रुखसत कर देते। इस तरह कई साल गुजर गए तो बादशाह मायूस हो चुका था। अब छोटे शहजादे की सरगश्त सुनिए। पूरे 7 साल गुजर गए मगर अब तक ये भाई की फ़िक्र में सरगर्दा है। कई शहर की खाक छानी मगर कुछ पता न चला। हुमा के कौल के मुताबिक हर सुबह उसके मुंह से 5 लाल गिरा करते, मगर उसको अपने भाई की फ़िक्र में इतनी फुर्सत कहाँ जो इन लालों को एहतियात से रखता। इसके अलावा उसकी तबीयत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे खुदा रसीदा फ़कीरों की हुआ करती है। शायद निचला हिस्सा खाने का असर हो। बहरकैफ वो जहाँ कहीं मुँह धोता वहाँ लालों मट्टी के नीचे दबा देता और चला जाता। इस तरह फिरते फिरते एक रोज़ उस शहर में आ निकला जहाँ उसका भाई हुक्मरान था। यहाँ ऐलान के मुआफिक सिपाहियों ने उसको भी रोक कर ले जाना चाहा, मगर वो चलने से इनकार करने लगा तो इनाम व इकराम का लालच दिया। जब उस पर भी कान न धरा तो उसका ये अनोखापन देखकर सिपाहियों का शुबा यकीन से बदल गया और ज़्यादा इसरार करने लगे, तुम्हें बादशाह के हजूर में चलना चाहिए वरना तुम्हारे हक में ठीक ना होगा। गर्ज ये लोग ऐसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़े कि बेचारे ने साथ चलने पर ही अपनी खैरियत समझी। चुपके से साथ हो लिया। सिपाहियों ने उसको ले जाकर बाहर ठहराया और एक सिपाही बादशाह को उसकी इत्तला करने चला गया। वक्त भी बादशाह चेहरा मगमूम बनाए अपने भाई की याद में बैठा हुआ था। सिपाही को देखकर कहा, क्या करना चाहते हो? सिपाही, आलीजा, आज भी एक अजनबी आया है। उसके अंदाज़े लापरवाही से पता चलता है कि वो ज़रूर चहनीट बसूत की कहानी जानता है। उसको लाया गया है, हुक्म आली हो तो हाजिर किया जाता है।
بادشاہ بیزاری کے لہجے میں اچھا آنے دو۔ سپاہی فوراً باہر گیا، بسوط کو لیے اندر داخل ہوا۔ بیچارہ آ کر سہما ہوا ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ جس طرح ایک آزاد پرندہ قفس میں بند ہو کر اچٹتی نظروں سے دیکھا کرتا ہے، بس یہ بھی اسی طرح گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو کہیں دیکھا ہوا چہرہ سامنے تھا۔ سوچنے لگا اس آدمی کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ دماغ پر زور دے کر غور کیا، لیکن سوائے دھندلے سے خیال کے کوئی بات یاد نہ پڑی اور دماغ چکرانے لگا تو خیالات کو دوسری طرف پھیر کر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کہا، اے اجنبی، کیا تمہیں چہنیڑ بسوط کی کہانی آتی ہے؟ اے بادشاہ، سن کر کیا کرو گے؟ آتی تو بہت کچھ ہے۔ کچھ ایسا بے باک ہو کر جواب دیا کہ اس پر بادشاہ کو بے حد غصہ آیا، مگر کیا کرتا؟ یہ سمجھ کر چپ ہو گیا کہ آخر ہے تو فقیر، آداب شاہی کیا جانے، آتی ہو تو کہہ ڈالو، ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ بسوط نے قصہ شروع کیا۔ قصہ کیا تھا؟ اپنے اور اپنے بھائی کی پیدائش، ماں کی محبت اور محبت میں ماں کا گھل کھل کر مر جانا، اور سوتیلی ماں کا برتاؤ، غرض کے جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی تھیں تمام بتا کر کہا، یہ تو کہانی نہیں ہے بلکہ بد نصیب بھائیوں کی آپ بیتی ہے۔ بادشاہ، پھر تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ یہ افداد جس پر پڑتی ہو وہی جو آپ جانتے ہوں گے۔ بسوط نے گلوگیر آواز میں کہا، کیسے نہیں جانتا؟ یہ میری اپنی ہی تو کہانی ہے۔ بدبخت بسوط، چہنیٹ کا بھائی میں ہی تو ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور بھائی کو لپٹ کر خوب رویا۔ اس کا لپٹنا تھا، بسوط نے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ دونوں کے دل کی بھڑاس خوب نکلی۔ ذرا سنبھل کر بادشاہ نے بھی اپنا تمام احوال بھائی کو بتایا اور بھائی مفصل کی کیفیت سنی۔ برسوں کے بچھڑے بھائیوں کا کچھ عجیب حال تھا، کبھی اپنی بد نصیبی پر آنسو بہاتے، کبھی ملنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو بھینچ لیتے۔ ہنسی خوشی اور غم مل کر ایسا انوکھا سما بن گیا تھا کہ اس منظر کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تو کیا محال ہے۔ الغرض صبح ہو گئی مگر وہ دونوں کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ اس طرح 6-7 دن گزر گئے تو ایک دن بادشاہ نے دربار خاص کا حکم دیا۔ حکم کا ملنا تھا کہ تمام دربار امیروں اور رئیسوں سے بھر گیا۔ بادشاہ نے سب کو مخاطب کیا اور کہا، تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ اپنے حالات زندگی تمہیں سناؤں۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ میری افسردگی تم لوگوں سے چھپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے اور اپنے بھائی کا تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کی عجیب و غریب کہانی سن کر سب لوگ متاثر ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بھائی کے ملنے کی خوشی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ یہ سب اپنی اپنی سمجھ کے موافق خیال آرائیاں کر رہے تھے۔ غرض کہ یہ پرلطف دربار تھوڑی دیر بعد برخاست ہو گیا۔ بسوط جب بھائی کی تلاش میں نکلا تھا، اس وقت اس کو سوداگروں کا ایک قافلہ ملا تھا۔ کچھ دن میں یہ بھی اس کے ساتھ گزر کر ادھر آ نکلا۔ اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک دن شہزادہ بسوط منہ در منہ ہو رہا تھا۔ اس وقت اتفاق سے ایک سوداگر کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے منہ سے لال گرتے ہوئے دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد چپکے سے زمین خرید کر لال نکال لیے، جیب میں ڈال لیے اور بہانہ کر کے اپنے ملک واپس چلا گیا۔ وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں یہ لال پیش کر کے بہت انعام و اکرام پایا اور تمام واقعہ بھی بتایا۔ بادشاہ کو اس کا یقین نہ آیا، اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ یہ تو عجیب پراسرار آدمی ہوگا، ایسا تو اب تک سننے میں نہ آیا۔ ممکن ہے حقیقت ہو، بات آئی گئی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیا، البتہ اچھے کاریگر بلوا کر ان لالوں سے بالکل نئی غذا کا ہار تیار کروایا۔ اس بادشاہ کے ساتھ لڑکیاں تھیں، کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے بادشاہ اپنی لڑکیوں کو بہت چاہتا تھا۔ یہ ہار باری باری سے ہر شہزادی کو پہناتا۔ لال تو ایسے نایاب تھے، چند ہی دنوں میں دور دور تک شہرت ہو گئی۔ اس بادشاہ کا دستور تھا، جو بھی لڑکی سنِ بلوغت کو پہنچتی تو اس کے لیے اس کی مرضی کے موافق شوہر تلاش کرتا۔ انتخاب کا بھی ڈھنگ نرالا تھا۔ جہاں لڑکی کی مرضی معلوم ہوئی تو بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کو قاصد بھجوا کر شہزادوں کو جمع کرواتا۔ شہزادی جس کو پسند کرتی، شادی اس کے ساتھ رچائی جاتی۔ اس طرح 6 شہزادیوں کی شادی ان کے انتخاب پر ہو گئی۔ اب 7ویں شہزادی کی باری تھی، جو ان لڑکی کو دیکھ کر بادشاہ کو فکر ہوئی، اس شہزادی کی شادی بھی جلد کر دینا چاہیے۔ اب میرا کیا بھروسہ، چراغ سحری ہو، ایک ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔
اس لیے بادشاہ نے قاصد روانہ کیے اور کئی شہزادوں کو بلوایا، لیکن شہزادی نے اب تک ایک کو بھی پسند نہ کیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ شہزادی مغرور ہے، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتی۔ بادشاہ نے ہزاروں جتن کیے، کئی بار التجانہ انداز میں بھی کہا، بیٹی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، خدا کے لیے تم کسی کا انتخاب کر لو تاکہ میں اپنے فرض سے جلد سبقت دوش ہو جاؤں۔ بادشاہ کا منانا گویا اندھے کے آگے رونا اور اپنے ہی نین کھونا تھا۔ شہزادی پر باپ کے الفاظ کا کچھ اثر نہ ہوا تو بیچارہ خود چاروں ناچار وہاں سے ہٹ جاتا۔ اس طرح اور کئی دن گزر گئے۔ اب شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ تر باغ میں رہنے لگی۔ ماں باپ سمجھاتے مناتے تنگ آ گئے اور سہیلیاں بیزار ہو گئیں، مگر شہزادی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تو سب اس کی مرضی پر چھوڑ کر ساکت ہو گئے۔ بھائی کے پاس رہتے رہتے شہزادہ بسوط کی طبیعت اکتا گئی تو اس نے بھائی سے اجازت چاہی، کچھ دنوں کے لیے سیاحت پر جانا چاہتا ہوں، بھائی اب جانے آنے کا خیال چھوڑ دو، اگر لوٹنے میں تم نے دیر لگائی تو اپنی سنورتی زندگی پھر سے پانی پھر جائے گا، تمہاری یاد میں میری حالت پہلے سے بھی زیادہ غیر ہو جائے گی۔ بھائی کے اتنے اصرار پر بھی ایک نہ مانا اور کہا، میری قسمت میں خانہ بدوشی لکھی ہے تو پھر مجھے کیا حق حاصل ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر مزے لوٹوں، انشاءاللہ کبھی کبھار آ جایا کروں گا۔ اتنا کہا بھائی سے گلے مل کر رخصت ہوا۔ پھرتے پھراتے اسی شہر کو آ نکلا۔ چھوٹی شہزادی جس باغ میں رہتی تھی اس کے قریب اپنا آسن جمایا، روز صبح منہ ہاتھ دھو کر گھومنے جاتا اور شام آ کر وہیں پڑا رہتا۔ ایک دن شہزادی ٹہلتے ٹہلتے باغ کے بالکل آخری حصہ پر آ کر ادھر ادھر دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر کٹیا پر پڑی، کچھ دیر رکی، اتنے میں شہزادہ بسوط درویشانہ لباس میں باہر آیا اور منہ دھونے بیٹھ گیا۔ شہزادی پہلی ہی نظر میں اس کے حسن سے متاثر ہو گئی۔ جوں ہی اس کے منہ سے لال گرے، دیکھے تو ہزار جان سے اس پر فدا ہو گئی اور دل میں ٹھان لی، اگر شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ تمام عمر بن بیاہی رہوں گی۔ اس ارادہ کے ساتھ ہی ایک خادمہ سے کہا، جا کر شہنشاہ عالم سے کہہ دو شہزادی اب اپنے بر کا انتخاب کرے گی، تمام شہزادوں کے علاوہ عام لوگوں کو بھی جمع کرائیں، ہاں شہر کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہنے پائے۔ یہ سن کر کنیز نے سر تسلیم خم کیا اور رخصت ہوئی۔ اس کی اطلاع بادشاہ کو ہوئی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، مگر کچھ سوچ کر اعلان کروایا۔ اعلان کے ساتھ ہی امیر غریب شاہ و گدا سب لوگ جمع ہو گئے۔ جو لوگ آنا نہیں چاہتے تھے سپاہی انہیں بھی پکڑ کر لے آئے۔ سود کو بھی خبرن لا کر کٹہرا کھڑا کر دیا گیا۔ بیچارہ بھونچکا ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو چکے تو بادشاہ مجمع پر نظر ڈال کر اندر گیا اور شہزادی کو لیے باہر آ کر خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی اس وقت بالکل سادہ سفید لباس پہنے تھی۔ اتنی سادگی میں بھی حسن کا یہ عالم تھا کہ اگر دیکھ لے 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ یہ متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سب کے پیچھے آخری صف میں بسوط دکھائی دیا تو ایک خادمہ کو بلوایا۔ کنیز آ کر چپ کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر انتظار کی، شہزادی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھ کر آئینہ سے بولی، شہزادی صاحبہ کنیز حاضر ہے۔ فوراً پلٹ کر کنیز جا کر قبلہ عالم کو بتاؤ کہ شہزادی صاحبہ شوہر کا انتخاب کر چکی ہیں۔ ہاں یہ بھی بتانا جو آخری صف میں بائیں طرف درویشانہ لباس پہنے کھڑا ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ اتنا سن کر کنیز خوفزدہ ہو گئی، شہزادی کا منہ تکنے لگی۔ شہزادی کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جی حضور ابھی جاتی ہوں۔ کنیز نے بادشاہ کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ غصہ سے برہم ہوتا ہوا مجمع کو برخاست کا حکم دے کر محل میں چلا گیا اور شہزادی کی طرف دیکھ کر، شہزادی کیا تمہیں اپنے بوڑھے باپ کی لاج نہیں؟ تمہارے اخلاق سے مجھے ایسی امید نہ تھی۔ بولو، جواب دو۔ عالیجا یہ اپنی اپنی پسند ہے، مجھے امارت و بادشاہت سے سخت نفرت ہے۔ اگر شادی کروں گی تو اسی فقیر سے، ورنہ اپنی ہستی کو عبادت و ریاضت کرتے ہوئے فنا کر دوں گی اور کبھی شادی کا نام بھی نہ لوں گی۔ بیٹی کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر بادشاہ کو چاروں ناچار چپ ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد بسوط اور قاضی کو بھی بلوا لیا اور عقد کروا کر رخصت کر دیا۔ دونوں میاں بیوی اپنی کٹیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔
کچھ دنوں بعد شہزادے نے اپنا سارا واقعہ بیوی کو سنا کر بھائی کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی تو شہزادی بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جاتے ہوئے باپ سے ایک وقت ملنے کو جی چاہا۔ بادشاہ بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ بادشاہ کی خدمت میں کچھ لال پیش کیے تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کچھ دیر سنبھل کر پوچھا، یہ لال کہاں سے آئے؟ شہزادی نے سارا حال بتایا تو جھٹ اٹھ کر دونوں کو گلے سے لگا لیا اور سب بیٹوں کو بلا کر تمام حالات سنا کر کہنے لگا، بے شک میری چھوٹی شہزادی تخت کی مستحق ہے۔ شہزادی اور شہزادہ بسوط نے مل کر کہا، خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، ہمیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر شہزادہ چہنیٹ سے ملنے چل پڑے۔ شہزادہ چہنیٹ بھی شادی کر چکا تھا۔ یہ سب مل کر مشورہ کیا کہ چل کر بوڑھے باپ کی کچھ خدمت کریں۔ باپ بھی اپنی بیوی کے مکر و فریب سے واقف ہو کر اس کو بہت پہلے ہی قتل کروا چکا تھا اور بچوں کی یاد میں آخری دن گزار رہا تھا۔ آخر ایک دن آنسو کی بارش میں مدتوں کے بچھڑے ملے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔